Hello and welcome everyone to another session of decoding answer writing through Topper's Answer Copy. यहाँ पे हम आंसर राइटिंग को डिकोड करेंगे और देखेंगे हाउ टॉपर्स राइट देयर आंसर, हाउ टॉपर्स आर एबल टू इनकॉर्पोरेट introduction, body and conclusion thing. And today we have taken the copy of Abhishek Sharma. He is rank 38 in CSE 2024. So let's look to his answer. So the question is, this is the basic question and one of his basics answer. The Vaikom Satyagraha marked a historic milestone in India's fight against social injustice, demonstrating the power of non-violent resistance in dismantling oppressive caste barriers. What he has written, Vaikom Satyagraha को describe किया पहले. Vaikom Satyagraha led by K. Kelapan was a temple entry movement in Kerala. Then historical milestone ये कैसे था in India's fight against social injustice. Then the points has been mentioned. The main motive of this initiative is to just show कैसे answers are being written by a topper. How an answer is being written by a topper. तो points mention है 1, 2, 3, 4. And then a conclusion. तो एक basic structure answer follow कर रहा है यहाँ पे. And in conclusion he has written, thus Vaikom Satyagraha was a watershed movement in Indian modern history. This is I have seen his lot of answers. This is one of his basic answer जिसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे information की कमी लगी है, but fine, ठीक है. All the 20 answers we are not unable to write perfectly. See his next answer. And the question is, what are northern and southern lights? Explain the phenomena and discuss their associated impacts. There are times when we are not aware of each and every part, but we try to address most relevant part to the question. जितना पता है उसका maximum part, जितना हमें at least पता है उतना हम mention करने की कोशिश करते हैं. What are northern and southern lights? पहला question. तो this thing has been mentioned in the introduction. किसी भी आंसर को कभी भी टॉपर्स कॉपी देखते हैं, उसको देखने से पहले just look टू द आंसर कि प्रेजेंट कैसे किया है. आप उसका प्रेजेंटेशन देखो. कंटेंट तो है ही, ऑब्वियसली कंटेंट है तभी वो टॉपर है, क्योंकि उसके पास कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर्ड है. उसका प्रेजेंटेशन पार्ट देखो, प्रेजेंटेशन पार्ट पे फोकस करो और उसका कैसे उसने आंसर को ऑर्गेनाइज करके लिखा है, कैसे आंसर ऑर्गेनाइज्ड है. जैसे ऑर्गेनाइज में या प्रेजेंटेशन पार्ट में हम ये चीज़ भी देखेंगे कि अगर ये हेडिंग है तो हेडिंग has been in the box. Impacts on earth atmosphere and human activities, this heading is also in the box. तो बेसिकली बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई अब हम नेक्स्ट पार्ट को आंसर कर रहे हैं, तो बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ पे डायग्राम, ज्योग्राफी में तो बहुत ज़्यादा स्कोप होता है डायग्राम्स का, तो वेर एवर देर इज अ स्कोप ऑफ डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम. एंड ऑल दिस स्टफ यू हैव टू डू इन 7 minutes. So let's move to the next question. यहाँ पे अच्छा, I wanted to mention one thing here, that impacts on Earth's atmosphere and human activities. कैसे northern and southern lights का इस phenomena का associated impacts on Earth का atmosphere and human activities. It is fine कि यहाँ पे 4 पॉइंट्स मेंशन कर दिए, बट अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर पे क्या इफेक्ट होता है और ह्यूमन एक्टिविटीज पे क्या इफेक्ट होता है, अगर इसको भी यहाँ पे हम एक टेबुलर फॉर्म में डाल देते तो ऑब्वियसली मे बी हाफ मार्क्स मोर, और इतने ही मार्क्स की फाइट होती है हर आंसर में. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट आंसर. दिस इज ऑल्सो अ 10 मार्कर. ऑब्वियसली हम पहले आंसर को देखेंगे. आंसर में मैप है, आंसर में एक मतलब फ्लो चार्ट बोल लेंगे, या हम इसे एक बेसिक डायग्राम बोल देंगे कि इतना लिखने का टाइम नहीं है, तो हमने जस्ट एक डायग्राम, एक छोटे से डायग्राम में ये चीज़ रिप्रेजेंट कर दी. क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाइंग द मेजर ऑटोमोबाइल क्लस्टर्स इन इंडिया, enumerate the favorable factors for the location of the automobile industry. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जहाँ पे है वहाँ पे क्यों है, दिस इज द क्वेश्चन. तो हमने इंडिया के मैप पे रिप्रेजेंट कर दिया कहाँ कहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, और इंडिया एक ग्रोइंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है विद अ मेजर वर्ल्ड प्लेयर सेटिंग अप देयर फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया. सो या दिस इज ऑल्सो अ गुड इंट्रोडक्शन कि हमने एक प्लस पॉइंट दिखाया है कि इंडिया एक ग्रोइंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, और बहुत सारे आउटसाइडर्स, बहुत सारी अदर कंट्रीज यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्लेस कर रही हैं. अच्छा, जब भी हम कुछ भी रिप्रेजेंट करते हैं मैप के फॉर्म में, दिस इज़ वेरी मच एडवाइजेबल कि आप उस मैप को डिस्क्राइब करो, उसको इनबॉक्स करो कि ये मैप बता क्या रहा है. तो मेजर ऑटोमोबाइल क्लस्टर्स इन इंडिया, ये मैप बता रहा है. वट आर द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर दिस लोकेशन?
तो हमने 3 पॉइंट्स बता दिए. ऑब्वियसली दिस इज अ 10 मार्कर. अब जनरली बच्चे 10 मार्कर लास्ट में लिखते हैं, दे आर आउट ऑफ टाइम. तो इतनी सारी लाइन लिखने के अलावा हमने बेस्ट किया, मतलब बेसिकली अभिषेक ने बेस्ट क्या किया कि उसने यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बताई कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो क्यों है. रबड़ इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, ये जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज हैं ये इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पास में है. तो ऑब्वियसली दस लीडिंग टू आउटसोर्सिंग ऑफ सप्लाई चेन. और सिंपल सा कंक्लूजन, इंडियाज लो लेबर कॉस्ट हैज मेड ग्लोबल प्लेयर शिफ्ट देयर प्रोडक्शन टू इंडिया. तो इस आंसर में भी 10 मार्कर के हिसाब से मैप है और ये रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज अ गुड आंसर. अगेन जस्ट लुक दिस आंसर वंस, एक बार इस आंसर को देख लो. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन यूथ इन इंडिया. अब ग्लोबलाइजेशन जो है ये मतलब डायरेक्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस में. ऑब्वियसली इस तरीके के जो भी टॉपिक्स होते हैं हमारी उस पर एक डेफिनेशन ज़रूर प्रिपेयर्ड रहनी चाहिए. डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन कुछ भी हमारा मतलब हमारा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. इस पे हम ये सब चीज़ों में हम लैग नहीं कर सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते हैं. ये हमारे कीवर्ड्स हैं हमारे सिलेबस के. तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन यूथ इन इंडिया. अब यहाँ पे एथिक्स की SWOT एनालिसिस का कितना अच्छा यूज़ किया हुआ है कि पॉजिटिव इफेक्ट्स में स्ट्रेंथ्स क्या है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं ग्लोबलाइजेशन की. एंड सिमिलरली नेगेटिव इफेक्ट्स में भी बताया है कि क्या वीकनेसेस हैं, क्या थ्रेट्स हैं. बेसिकली आई एम नॉट हेयर टू डिक्टेट और जस्ट रीड द आंसर. आई एम टॉकिंग ऑन द प्रेजेंटेशन पार्ट, हाउ द टॉपर हैज ऑर्गेनाइज्ड हिज आंसर एंड द कंटेंट. ऑब्वियसली कि कंटेंट रिच आंसर लिखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ यू विल ब्लफ डेफिनेटली यू विल से कि मैंने तो 20 के 20 अटेम्प्ट करे बट मेरे नंबर नहीं आए. तो नंबर नहीं आए क्योंकि कंटेंट नहीं था. कंटेंट रहेगा तो नंबर आएंगे. सो या नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये वाला स्लाइड आई हैव जस्ट इंक्लूडेड टू शो यू द स्कोप ऑफ मैप इवन इन हिस्ट्री का आंसर. एक्सपेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन था तो अभिषेक जस्ट रिप्रेजेंटेड इंडिया का छोटा सा पार्ट और कहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो एक्सपैंडेड है. ऑब्वियसली एग्जामिनर देखेगा इसने क्या बनाया, हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स देके जाएगा. देन यहाँ पे एक क्वेश्चन था, दिस इज ऑल्सो हिस्ट्री का क्वेश्चन. हिस्ट्री के क्वेश्चन पे भी कैसे स्कोप रहता है हमारे पास मैप बनाने का. तो ये क्वेश्चन दांडी मार्च पे था. अब क्वेश्चन दांडी मार्च पे था तो ये बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन है कि हमने मैप बनाया, अभिषेक ने मैप बनाया और उसने मेंशन किया कहाँ से कौन से लीडर्स थे, कहाँ से नेहरू जी थे, कहाँ से विनोबा भावे थे, कहाँ से सी राजा गोपालाचारी थे. तो बस ये वाला स्लाइड एक रिप्रेजेंटेशन था कैसे हिस्ट्री में भी हम मैप प्रेजेंट कर सकते हैं, मैप दिखा सकते हैं. ये वाला भी स्लाइड मैंने इसीलिए दिखाया कि एक पेपर में, एक जीएस पेपर में अभिषेक ने इतने सारे मैप्स बनाए हैं वेर एवर नीडेड. फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेजर्ट्स का क्वेश्चन था तो मैप है. सम डेजर्ट्स फॉर्म एज दे लाई इन द रेन शेडो रीजन ऑफ द माउंटेन्स. दिखा दो. रेन शेडो दिखाने में कितना टाइम लगता है कि यहाँ पे ड्राई सबसिडिंग एयर होगी तो वहाँ पे हमारा डेजर्ट फॉर्म होता है. अगेन it's not that you don't know the answer, it's all about practice and it's all about practice और कैसे आप over the time practice कर करके इन सब चीज़ों को incorporate करते हैं अपने आंसर्स में. तो ऐसा तो नहीं है कि ये डायग्राम के से आप अवेयर नहीं रहे होंगे. तो ऑब्वियसली अभिषेक अवेयर भी था और उसने एग्जीक्यूट भी किया. इसको एग्जीक्यूशन के मार्क्स होते हैं. यहाँ पे सिमिलरली अगेन मेजर लोकल विंड पैटर्न्स का मैप हमने बनाया. चिनूक, ब्लिजार्ड, फोहेन, सारा सारा हमने मैप में रिप्रेजेंट किया. डज नॉट मीन आप बहुत सुंदर मैप बनाओ. अभिषेक के मैप तो डेफिनेटली थोड़े सुंदर हैं बाकियों के मैप से, बट आप इसे थोड़ा कम सुंदर मैप भी बनाओगे बट इंफॉर्मेशन उसमें दोगे. एफर्ट, अगेन आई एम टेलिंग कि एफर्ट, मार्क्स एफर्ट के होते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. अच्छा, ये वाला थिंग आई हैव इंक्लूडेड टू जस्ट शो कि कितना अच्छे से और कितना लेस स्पेस लेके हम टेबुलर फॉर्म में कभी कभी चीज़ें दिखा सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे विंड रीजन इम्पैक्ट जो अभी मैंने मैप दिखाया था उसी का ये फर्दर आंसर है कि वी जस्ट शोड द विंड, वी शो कहाँ पे है और उसका इम्पैक्ट क्या है. हम इसको स्ट्रेट फॉर्म में भी लिख सकते थे
बेसिकल जो हम अपना हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट फॉलो करते हैं उसमें भी लिख सकते थे, बट ऑब्वियसली वो हमारा पेपर भी ज़्यादा कंज्यूम करता और इतना अपीलिंग नहीं लगता जितना अपीलिंग ये आंसर लग रहा है, कि सीधा देखते ही मतलब देखने के साथ एक आप इम्प्रेशन क्या कैरी करते हो, एक एग्जामिनर के माइंड में क्या इम्प्रेशन आता है आपके आंसर को लेके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली एक रेयर अर्थ एलिमेंट्स का क्वेश्चन था, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के क्वेश्चन में भी अभिषेक ने अगेन मैप दिखाया। आई थिंक 3 4 5 जितने भी क्वेश्चनों में मैप की नीड थी, ही हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू शो द मैप। कहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ऑब्वियसली उसने ये चीज नहीं बोला कि मैप का जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन है हमें उस चीज को बॉक्स में भी डालना है, ठीक है। नाउ द लास्ट स्लाइड, इस क्वेश्चन को बस देखो पहले, सॉरी इस क्वेश्चन के आंसर को जस्ट देखो। इस क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन है, और डेफिनेटली इंट्रोडक्शन इज द बेसिक थिंग कि ओशन करेंट्स क्या होता है, रेफर टू द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ओशन वाटर इन अ प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन। देन ऑफ कोर्स ओशन करेंट्स ही रिप्रेजेंट कर दी। अब किसी को देखने में लगेगा दिस इज सो टफ डायग्राम एंड ऑल दैट थिंग, दिस इज द मोस्ट बेसिक डायग्राम इन ज्योग्राफी। ओशन करेंट्स या ओशनोग्राफी हम जब भी स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली वी स्टडी दिस डायग्राम। अगर देन एंड देयर ओनली इफ यू विल प्रैक्टिस दिस डायग्राम 2 to 3 times और रैंडमली कभी रात में बैठे बैठे जस्ट टेक अ पेपर, ड्रॉ द ओशन करेंट्स, ऑब्वियसली दीज थिंग्स वर्क। आपकी मेमोरी में ये सब चीजें फीड होंगी, और फीड होंगी तभी आपके पेपर में निकलेंगे, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप 1-2 दिन में आप ये सोचो कि अब मेरे को कल टेस्ट लिखने जाना है तो ये सारी चीजें मैं एक दिन में इनकॉर्पोरेट कर लूँ, नहीं। ऑल दिस थिंग्स बहुत रिगरस प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ही ज्यादा रिगरस प्रैक्टिस इज बीइंग देयर। एनीवेज, again map is being described, factors that influence ocean currents, क्या क्या factors influence करते हैं, describe the various, मैंने क्वेश्चन नहीं रीड किया था, describe the various factors that influence ocean currents and discuss their multi-dimensional impact। तो हमने ओशन करेंट्स क्या होता है, हम अभिषेक ने पहले ये बताया इंट्रोडक्शन में, ओशन करेंट्स रिप्रेजेंट कर दी। अब इसके इफेक्ट्स फैक्टर्स क्या होते हैं, तो जब सामने एग्जामिनर, फॉर एग्जांपल समझो, वैसे ऑब्वियसली एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस थिंग, बट सामने है तो इट इज सो कन्वीनियंट फॉर हिम टू सी कि ठीक है, वट एवर फैक्टर्स हैज बीन रिटन, एबल टू सी इन द डायग्राम। Then salinity distribution is one of the factor. Again, one छोटा सा representation of temperature difference. Then shape of the coast, Gulf of Mexico, इसका भी representation. See, in just 15 marker, there are one full map and two small representation, small diagram का representation. And only these things, fetch marks. 1 नंबर 2 नंबर का जो फाइट होता है वो यहीं पे बच्चा जीतता है, वहीं से टॉपर्स निकलते हैं जो इन सारी चीज़ों को जीत पाते हैं। एंड in last simple sa conclusion, thus ocean currents are important geoclimatic phenomena and its study become important. That's it. So basically what we took back from his answer sheet is maps in GS paper 1 particularly, अभी हम GS paper 1 की बात कर रहे हैं, wherever needed maps, ठीक है, introduction conclusion नहीं छोड़ना है, and body में all the aspects whatever are there in the question, just highlight those things कि ठीक है मैं इसी से heading बनाता हूँ और इसी को फिर अपने आंसर्स में incorporate करता हूँ। Just try to be as relevant as possible while writing answers, and of course you will develop this thing over the time. So yeah, this was for this session, and this was all for today. Thank you.